السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بہت ہی شاندار اور لاجواب گفتگو ہے۔ ایک غیر مسلم ایمان لائے اور کئی طرح کے لوگوں میں ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ انہوں نے میرے سامنے اپنی بات رکھی، میں نے ان کو جو ہے سمجھانے کی کوشش کی اور میں نے کافی کچھ ان کو بتایا، سمجھایا۔ آپ حضرات اس گفتگو کو سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا۔ آپ حضرات اس چینل کو سپورٹ کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ جو بھائی اس چینل پر نئے ہیں وہ ضرور سبسکرائب کریں۔ ہیلو، السلام علیکم کون صاحب؟ جی، میرا نام آزاد ہے صاحب۔ آپ کے پاس کچھ منٹ ہوں گے؟ تھوڑا سا وقت لگے، کچھ بات کرنی تھی کس مسلک سے ہیں؟ دین کے مسئلے سے، جی، دین کے معاملے میں۔ مطلب آپ کس مسلک سے ہیں، کس جماعت سے ہیں؟ کس جماعت سے ہیں؟ دراصل میرا جو ہے نا ایک وہ ہے کہ میں جو ہے ابھی کچھ دن پہلے ہی اسلام قبول کرا تھا، اور مطلب کچھ دن پہلے ہی جو ہے نا میں نے اسلام قبول کیا۔ اچھا اچھا، ہاں، تو جس شخص کے ساتھ میں تھا وہ انہوں نے مجھے بتایا ساری چیزیں، تو مجھے ان کی بات اچھی لگی۔ دراصل بات یہ تھی کہ انہوں نے بتایا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے نا، بتوں کی پرستی صحیح نہیں ہے، بت جو ہم پوجا کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ بات اچھی لگی۔ میں نے اوروں کو بھی دیکھا، ہمارے جو سادھو سنت ہیں انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہاں مورتی پوجا غلط ہے۔ تو مجھے یہ بات اچھی لگی تھی۔ حالانکہ پہلے میں عیسائی بننا چاہ رہا تھا، مگر عیسائیوں میں بھی دیکھا وہی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں۔ جی صاحب سن رہے ہیں؟ سن رہا ہوں۔ ہاں، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا اور اندھوں کو روشنی دی، انہوں نے کہا، مگر عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے۔ تو یہ بات اچھی نہیں لگی مجھے، تو میں نے عیسائی دھرم قبول نہیں کیا۔ تو پھر میں نے اسلام کو بہت بے چین تھا اس چیز سے کہ میں کہاں جاؤں، مجھے مورتی پوجا اچھی نہیں لگتے اور یہ بہت ہی بناوٹی اور پیسے ویسے دھوکہ دھڑی مطلب اچھے نہیں لگتے، دل گواہی نہیں دے رہا تھا۔ تو میں نے ایک شخص کے کہنے پہ، اور اردو بھی سیکھا میں نے تھوڑا بہت ان سے، تو اچھا، ہاں، تو اس شخص کے کہنے پہ میں نے اسلام قبول کیا۔ مگر جب قبول کیا تو مجھے بڑا سکون ملا، بڑا اچھا لگا کہ اب ایک ہی اللہ، ایک ایشور کی عبادت کر رہا ہوں ہیں اور پیغمبر کو مان رہا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو طریقے ان کے پڑھے ہیں میں نے تھوڑے بہت، اور جو بتائے گئے، جو ودوانوں نے بتائے، علماء نے بتائے، وہ بہت اچھے لگے مجھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، ان کے ہر چیز تو اچھا لگا، اور اس کے بعد مجھے سکون سا ہے۔ مگر اب جو ہے نا میں یہاں پر آیا ہوں، ایک کرائے کے مکان میں رہ رہا ہوں۔ اچھا ہاں، تو وہاں پہ میرے کچھ دوست ہیں، اچھا ان سے کچھ باتیں ہوئی، اچھا، تو انہوں نے پھر کچھ چیزیں بتائی مجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ انسان نہیں ہے، وہ نور سے بن۔ میں وہی تو جاننا چاہ رہا ہوں، وہ بتا رہے ہیں۔ اب میں پتہ کنفیوز کر دیا مجھے۔ وہ کہہ رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں ہے، وہ نور سے بنے ہیں۔ وہ مسلمان ہیں وہ بھی، اور اس کے بعد وہ تھوڑا درگاہ ورگاہ میں بھی جاتے ہیں۔ تو مجھے تو پہلے کے جو علماء نے جنہوں نے اسلام قبول کروایا انہوں نے بتایا نہیں تھا درگاہ ورگاہ کے بارے میں، تو میں درگاہ کو بھی، اب یہ کہہ رہے کہ وہاں بھی، تو تھوڑے تو مسئلے میں اب تھوڑے کنفیوزنگ میں آ گیا ہوں میں کہ کیا کروں۔ پہلے بھی میں ہندو تھا تو وہی مندر جا رہا تھا اور وہی چادر چڑھا رہا ہوں، وہی کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں۔ اب یہ لوگ مجھے جو ہے نا کنفیوز کر رہے ہیں، کہہ رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے، وہ تھے۔ اب باقی میں نے جب شروع میں پڑھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا وہ ایک پیغمبر ہیں، عظیم پیغمبر، اور انسانوں میں سے ہیں۔ تو مجھے بالکل پکا یقین ہو گیا کہ یہی ہے مذہب جسے میں ڈھونڈ رہا تھا، کیونکہ ایک ایشور کے علاوہ کوئی ایشور ہے ہی نہیں۔ اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پیغمبر ہیں، پیغام پہنچانے والے، مگر یہاں پہ کنفیوز ہو گیا کہ اب وہ کہہ رہے کہ انسان نہیں ہے، تو انسان نہیں ہے تو پھر وہ خدا ہے، تو پھر تو وہی تو دوسرے مذہب والے جو کہتے ہیں وہی اب یہ کہہ رہے ہیں۔ تو سر آپ جو ہے نا مجھے تھوڑا سا یہ کنفیوزنگ دور کر دیں تو بڑا یہ ہوگا۔ انہوں نے نمبر دیا کہ ان سے بات کرو، یہ صحیح طریقے سے سمجھائیں گے۔ کینوں نے نمبر دیا؟ ذاکر بھائی ہیں کوئی، ذاکر بھائی ہیں کوئی۔ شاکر بھائی کہاں کے ہیں؟ یہ
मेरठ साइड के हैं। मेरठ? हाँ। किस मसलक से? अब ये तो मुझे इतना तो नॉलेज है नहीं, अब वो उन्होंने लिया होगा किसी से नंबर आपका, तो उन्होंने मुझे दे दिया, इस तरीके से बात। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, तो इतनी देर से मैंने आपकी बात सुनी, क्या आप मेरी भी बात सुनेंगे? जी जी जी, आप जितना बोलेंगे पहले मैं आपकी बात ही सुनूंगा, उसके बाद में बोलूंगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं अभी आपसे ये पूछना चाहूंगा जी। कि अभी जिन लोगों के साथ हैं आप, जी। वो कौन लोग हैं, किस नजरिए का जो है उनका मामला है, क्या जो है उस जमात का नाम है, जमात वाले हैं या गैर जमात वाले हैं, मुकल्लिद हैं या गैर मुकल्लिद हैं, अब ये उनको अहले हदीस कहा जाता है या देवबंदी कहा जाता है? अच्छा। तो थोड़ा सा आप मुझे खुल के बताएं, छुपाएं बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप मुझसे छुपाओगे तो कितना भी छुपाओगे तो बहरहाल छुपा नहीं पाओगे। हाँ, ठीक है, मतलब ऐसा करके मानो। हाँ, नहीं, जिसने मुझे जो शुरू में जो जिसने दावत दिया मुझे, उनके नहीं नहीं नहीं, जिनसे अब मेरा रास्ता हो रहा है, अभी जिनसे- हाँ, अभी जिस जमात के साथ हैं आप, हाँ 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 जिस जमात के साथ अभी हैं, हाँ हाँ जिन लोगों के साथ आप हैं, हाँ। तो उस जमात का नाम क्या है? वो जमात में जाते हैं या नहीं जाते हैं? अच्छा, वो नमाज जो पढ़ते हैं तो वो बार बार रफाए दैन करते हैं या नहीं करते हैं? अच्छा। मतलब कानों तक हाथ उठाना, बार बार और जोर से आमीन कहना, हाँ। किन अच्छा, लोगों के साथ हैं आप? देखिए, जो पहले जहाँ जिससे मैंने सीखा है, हाँ हाँ, तो वो तो नमाज पढ़ते हैं और वो कुछ नहीं कहते। उनसे जब मैं शुरू में मिला, अब तो खैर मिलना नहीं। देखिए, अब तो मैं जाता हूँ मस्जिद में, सामने मस्जिद है और वो हाँ। पता नहीं देवबंदी है शायद, उनकी मस्जिद में नमाज पढ़ रहा हूँ, मगर उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हम कुछ नहीं, हम मुसलमान हैं, क्योंकि वो जो है ना, उन्होंने कहा कि मैं मुसलमान हूँ और अल्लाह ने कहा है कि अपने आप को मुसलमान कहो। ठीक है, वो सब मैं समझ रहा हूँ। हाँ, अब बाकी मतलब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मैं आपसे हाँ। जानना चाहता हूँ, इतने बड़े सीधे भी नहीं है आप भाईजान, हाँ क्योंकि अपना मामला जो है ना बिल्कुल क्लियर और खुल के बोलने वाला मामला है अपना। हम हाँ। मोमिन हैं, मुसलमान हैं और ईमान वाले हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। हम मुनाफिकीन में से नहीं हैं। हाँ। मुनाफिकीन की निशानी हुजूर ने बताई है कि वो अपनी पहचान को छुपाएगा। हाँ, तो नहीं, हमें- मैं मुसलमान हूँ अब। हाँ मैं हाँ, मुसलमान हूँ। नहीं आपको नहीं कह रहा हूँ, हाँ। मतलब मैं एक बात बता रहा हूँ कि जो हाँ, भी हाँ। जो है किसी को छुपाएगा, है ना, तो ऐसा ना हो कि हुजूर का ये फरमान हमारे ऊपर उस तरह से मतलब फिट हो जाए, हाँ 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 हाँ, है ना? हम्म, तो मैं आपकी जो है सीधी सीधी पहचान जानना चाहता हूँ कि अभी फिल वक्त हाँ आपका उठना बैठना रहना सहना हाँ। किस जमात के लोगों के साथ है? वो नहीं, लोग नहीं, मतलब देवबंदी हैं या अहले हदीस हैं? अब देखो, देवबंदी है, अहले हदीस है, ये तो मुझे नहीं पता, है ना, क्योंकि दोस्त फिरकों के पता तो बारे में जरूर ज्यादा होगा। कितने साल हो गए आपको इस्लाम कबूल किए हुए? नहीं सर, करीबन हो गया 1 महीना हो गया। अच्छा, 1 महीना। हाँ, हाँ, तो तो एक शायद बात आपको मैं पता पूछूं नहीं सर? होगा। अच्छा, एक और चीज बताऊं आपको, हाँ। जिसने ये कहा कि हुजूर इंसान नहीं है, उससे मेरी बात करा सकते हैं? अभी तो वो नीचे है, बुला लीजिए, फौरन बुला लीजिए। मगर यहाँ तो नीचे है, मतलब भाई यहाँ साहब, तो नीचे। बुला लीजिए ना फौरन, मैं आपका कंफ्यूजन दूर कराऊंगा। आपको कंफ्यूजन है और ठीक है, आप मुझे रोजाना कॉल कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है। मगर इफहाम तफहीम के लिए, इस्लाह के लिए ऐसा ना हो कि बहसो मुबाहिसा आप करें। तो बहसो मुबाहिसा मैं आपसे नहीं कर पाऊंगा, मैं भी नहीं करूंगा, मैं भी नहीं। इसलिए कि आप अभी नए हो। हाँ हाँ, जिन लोगों के साथ हो उनका कोई बड़ा गुरु हो तो उससे आप मेरी बात करा सकते हैं। हाँ, दूसरी नहीं, एक बात और भी पूछूं मैं, क्या बोलिए। इजाजत है? बोलिए। क्या इस्लाम को मानने के लिए फिरकों को मानना जरूरी है? देवबंदी, सुनिए बरेलवी? सुनिए सुनिए, आप अभी नए हो, हाँ ठीक है, आप अभी नए हो और आपको ज्यादा जानकारी नहीं है, और कुछ लोग ऐसे मिलेंगे हाँ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हुए हमारे नबी की तौहीन करते हुए मिल जाएंगे आपको। हाँ, ऐसे तो बहुत है, समझे? मैंने तो अभी कई वसीम रिजवी को भी सुना, कई हैं ऐसे तो। हाँ, वो एक शैतान है, उसने कुरान हाँ, की आयतों वो को तो बदलना अल्लाह के चाहा, खिलाफ है। अल्लाह जो- ताला ने उसी को बदल दिया।
एक महीने में मैंने इतना सीखा है कि जो अल्लाह के रसूल के खिलाफ होगा वो अल्लाह के खिलाफ है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक अल्लाह के नहीं। रसूल की इज्जत नहीं करेगा, अल्लाह उसको बेइज्जत अल्लाह कर उसकी देगा। इज्जत नहीं करेगा। हाँ, बेइज्जत करेगा। अरे इज्जत अल्लाह को किसकी इज्जत करने का क्या पड़ा यार? हाँ, मेरे भाई है? लफ्ज इस्तेमाल करें सही वाले। जो अल्लाह के इज्जत रसूल देने की वाला है, इज्जत नहीं अल्लाह जिल्लत करेगा, देने वाला है। अल्लाह उसे उस पर लानत कर देगा। हाँ, अल्लाह ताला और ऐसे जो- लोगों पर लानत फरमाता है, लानत भेजता है। और अल्लाह से मोहब्बत करने का मतलब है अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करो। जी हाँ, अल्लाह की अगर बात माननी है तो अल्लाह के रसूल की बात मानो, जो अल्लाह के सुभान रसूल ने अल्लाह। कहा है उसी बात को मानो। देखिए, जिस और इंसान जितना ने भी कहा आपको उतना बोला मानो। है जी, कि हुजूर नूर नहीं है, वो या तो बेचारा बगैर पढ़ा लिखा इंसान है, कम इल्म इंसान है, ठीक है, समझ रहे हैं? हाँ, या फिर वो हम अहले सुन्नत वल जमात में से नहीं है। अच्छा जी, ठीक है, दो ही बातें हो सकती हैं, या तो वो ला इल्म है, कम इल्म है बेचारा, हाँ, ठीक है, या फिर वो हम अहले नहीं, सुन्नत वल जमात में से नहीं है। हमारा आलिम आपने कोई नहीं शायद कहता कि हुजूर, सवाल बस सुना एक नहीं। मिनट भाईजान सुने पहले मेरी बात। हाँ, आप आलिम की बात पे भरोसा करेंगे या गैर आलिम की? मैं उनकी बात पे भरोसा करूंगा जो सच्ची बात, अगर मुझे अरे आलिम की भाई बात पे भरोसा- सच्ची बात छोड़िए, जो आलिम कहेगा उसकी बात को मानेंगे और जो सही बात करेगा, या गैर आलिम की? एक बात कहूँ सर, बोलिए। आलिम सारे में है, हर किसी में एक आलिम है। अब अरे मैं कौन से छोड़िए, आलिम वो की बात छोड़िए, करूं? देखिए सुनिए कौन से आलिम की मालूम? सुनिए, हाँ, अगर इस दौर में कोई हक जमात है तो हाँ, उसकी पहचान है मसलक आला हजरत से। अच्छा, सुन्नी, हनफी, बरेलवी, जो बुजुर्गान दीन को मानने वाले हैं, औलिया हाँ। किराम को मानने वाले हैं, किसी बातिल जमात में कोई अल्लाह का वली नहीं है। ये आप नजरें उठा के देख लें, खूब नजरें उठा के देख लें। और हम अल्लाह के किसी नबी को, किसी वली को अल्लाह का ना तो बेटा मानते हैं और ना उसको अल्लाह मानते हैं, ठीक है। और जैसे आपने कहा कि हुजूर जो है वो बशर नहीं है, तो ऐसा हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा नहीं है। अगर कोई ऐसा अकीदा रखता है कि हुजूर बशर नहीं है, वो काफिर हो जाएगा। बिल्कुल। मगर दूसरी बात ये भी सुनिए, हाँ जी, जो हुजूर को नूर नहीं मानता वो भी काफिर हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही कुरान से साबित है। ठीक है। हुजूर की सुनिए, नूर का अलग फलसफा, एक मिनट, वो अलग दोनों चीज। चीजें समझाता हूँ, बोलिए नहीं बीच में। हाँ, ठीक है दोनों चीजें कुरान पाक से साबित हैं। जी, हुजूर की बशरियत भी कुरान पाक से साबित है और हुजूर की नूरानियत भी कुरान पाक से साबित है। ठीक जी, अच्छी बात है। चलो, हाँ, नूर समझ का रहे? मुझे कोई वो नहीं है, ये आपने मेरे दिल को तसल्ली दी, क्योंकि अब ये आएंगे ना तो मैं इनसे थोड़ा बात करूंगा कि आपने भी कह दिया है कि वो आप मेरी बात कराइएगा उनसे। जी जी जी, जरूर करवाऊंगा। हाँ, वो जो भी है बहरहाल, हाँ, और या ऐसे कोई मामले में तो खैर बहस भी नहीं या कोई करते। आपको धोखा देना चाहता है या क्या करना चाहता है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है? मुझे कोई धोखा नहीं देगा, क्योंकि अगर मुझे कोई नुकसान में डालेगा तो अल्लाह ही डालेगा, और कोई मुझे नुकसान से निकालेगा तो अल्लाह ही निकालेगा। अल्लाह नुकसान में किसी को डालता ही नहीं है। अगर कोई और- अल्लाह का बंदा है, अल्लाह के रास्ते पर सुनिए चल तो पड़ा सही। है, और अल्लाह नुकसान में उन्हीं को डालता है जो उनसे नाफरमानी करेगा। हाँ, नाफरमान बस। को अल्लाह गुमराही में जी। डाल देता है। ये बात जो अल्लाह और हकीकत है उसके ना? रसूल के दुश्मन है, हाँ, उसे गुमराही में वही, डालेगा, अल्लाह ही डालेगा। हाँ, वही गलत रास्ते पर हैं और वही गुमराही पर हैं और वही है जो ना? है हाँ। खसारे में हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समझे जो भाईजान, अल्लाह आप और मुझे रसूल के रोज खिलाफ कॉल है, करो, रोज बात करो, सब कुछ बताऊंगा इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। अगर इस दौर में कोई जमात हक पर है तो वो हम हैं, अहले सुन्नत वल जमात, ठीक है। हाँ, हमारे और अलावा आपको कोई कुछ- वहाबी, देवबंदी, कोई बदमजहब, कोई बदअकीदा, कोई शिया, राफजी, खारजी, कोई हाँ। हक पर नहीं, सब के सब बातिल है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस गुनहगार का खुलेआम ऐलान है और आप मेरी ऑडियो को जो है यूट्यूब पर, इंटरनेट पर सुन सकते हैं। हाँ हाँ, खैर ठीक है? ये तो आपने कह दिया, मैं तो ये भी नहीं कह सकता, क्योंकि देवबंदी जी यही कहते हैं। और देखिए, आप मेरी बात करा सकते हैं, आप तो देवबंदी लोगों को पकड़ पकड़ के मेरी बात करा सकते हैं। हाँ, क्योंकि ठीक है? और उनके मैं सिर्फ कुछ- कहता नहीं, करके दिखाता हूँ। हाँ, नहीं ये समझे बात- भाईजान? हाँ हाँ, चलो एक बात और तो आपकी आपसे, मुझे पता आ हाँ गई जी, ये कि आपने ये साबित कर, ये बता दिया कि जो है बसर है ना? हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर भी हैं और बशर भी हैं, दोनों हैं। हाँ, आप नूर अगर का एक मतलब ही मुझे पता मानेंगे, नहीं, सुनिए नूर की मेरी बात सुनिए भाईजान, हाँ जी, अगर आप एक ही मानेंगे, आप हाँ। हुजूर को बशर ना माने और सिर्फ नूर माने तो भी काफिर हो जाएंगे, और हुजूर को सिर्फ बशर माने, नूर ना माने, ठीक है, तो अभी आप काफिर हो जाएंगे। अच्छा सर, एक बात पूछूं?
ये बात समझ में आई नहीं आई बाद में पूछिएगा हाँ, आगे की बात। बिल्कुल 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 दोनों बातें समझ में आ गई? हाँ, अब इसी से मैं पूछूं जरा। जी जी सर जी। जी, अब देखो मुझे तो इतनी तो इजाजत दो कि अगर कोई चीज मुझे नहीं पता तो मैं पूछ सकूं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो आपसे कहा ना कि आप मुझे सर, रोज कॉल करके रोज कुछ भी पूछ सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। नूर मुझे पता नहीं है, नूर क्या चीज है? अच्छा, हाँ जी नूर क्या चीज है? जी जी जी। अच्छा, देखिए नूर एक रोशनी है, उजाला है। अच्छा जी ठीक है जी। हाँ, और हमारा रब भी नूर है। हाँ समझ ये रहे हैं? बात आप लोग सही हैं, हाँ हमारा जो रब है वो नूर है। जी। तो आप और ये अल्लाह तबारक व ताला ने अपने नूर से अपने महबूब को पैदा किया सारी कायनात से पहले, जी 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 जब कुछ ना था। हाँ समझ रहे हैं? जब हाँ। कुछ भी ना था, सिर्फ अल्लाह था। हाँ तो अल्लाह तबारक व ताला ने अपने हबीब के नूर को पैदा फरमाया। जी। हाँ, तो सर एक और सवाल कंडील और में पूछूं? सजाया। समझे? सर एक सवाल और पूछूं? मैं पहले ये बात बता दूं यार, जी 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 जी, बोलिए बोलिए। और अल्लाह के हुक्म से हाँ वो नूर जहाँ चाहा सैर की, है ना, हाँ जहाँ चाहा हाँ सैर की, घूमे टहले फिरे, है ना, अल्लाह की इबादत की, जो भी किया। जी ठीक, अल्लाह के हुक्म से जहाँ चाहे। बहरहाल जी फिर एक वक्त ऐसा आया कि अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब को, अपने हबीब को बशरी हालत में, बशरी लिबास में इस दुनिया में हमारी जो है हिदायत के लिए भेजा। जी 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 ठीक है जी। और एक चीज और मैं बता दूं आपको, पता नहीं कोई किस तरह बताए आपको, किस तरह ना बताए। जी जी जो हमारे नबी हैं जी ये सबसे अव्वल नबी हैं और सबसे आखिरी में भी हैं। हाँ जी जी, इस बात को तो उन्होंने भी बताया जिनसे मैंने पहले, और वो अलग हिसाब से बताया उन्होंने। चलिए बहरहाल पता नहीं कैसे बताया कैसे नहीं बताया, तो मैं बता देता हूँ, आपको जाहिर कर दूं। सुन लीजिए। अच्छा बताइए। हाँ, उन्होंने बताया कि जो हमारे नबी हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी जब ये इस दुनिया में नहीं आए थे, पैदा नहीं हुए थे, तो इनसे पहले भी तमाम धर्मों की जो किताबें थी ना, हाँ। उनमें इनका नाम आ चुका था। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हाँ, तो इस हिसाब से जो है ये पहले नबी है। आपके जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी जो किताबें हैं, रामायण है और गीता है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, जितने भी आपके जो ये वेद हैं, हाँ हाँ, इन वेदों में जिक्र है। हाँ हाँ, और कलमा इसके है। अलावा भी नहीं, उसमें भी है, तौरात में भी है। हाँ और हाँ, इंजील में तौरात, भी है। ज़बूर, इंजील, वो तो हाँ, उसमें तो सब है ही, वो तो आसमानी किताबें हैं। हाँ हाँ, मगर मैं आपके मतलब जो पहले ये जो गैर मुस्लिम लोगों की जो किताबें हैं हाँ उसमें भी है। हाँ उसमें क्यों नहीं होगा भाई, वो तो आसमानी किताबें हैं चार। हाँ, मगर लोगों ने उसमें तब्दीली कर दी। मगर कुरान एक हाँ, ऐसी हाँ, किताब है जिसमें कोई मिलावट। तब्दीली नहीं कर सकता। नहीं सकते, इसकी हिफाजत अल्लाह करेगा। इसकी हिफाजत अल्लाह करेगा। देखो ऐसे अल्लाह हिफाजत करता है कि जिसने कुरान पाक को बदलने की जो है दिल में एक उमंग ठानी थी, जिसने कुरान पाक को बदलने का वादा किया था, अल्लाह ताला ने उसको खुद ही बदल दिया। बदल दिया, ये हकीकत है। वो खुद आप बदल वकील गया। की बात कर रहे हैं, है ना? हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। चला था कुरान पाक की आयत बदलने, अल्लाह ताला ने उसको ही बदल दिया। हाँ, बहरहाल अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं है। मेरी जो है ना कहावत बुजुर्ग बताते हैं, कहते हैं, है ना, कि अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती, है ना? बिल्कुल हकीकत है। हाँ, अब हाँ, बहरहाल चलिए, तो मैं बता रहा था कि हमारे नबी जो हैं वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले नबी हैं। हाँ, जब हाँ, हुजूर खुद फरमाते हैं कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान है, पानी और रूह के, जिस्म और रूह के दरमियान है। ये दो तरह की जो है रिवायतें मिलती हैं, हदीसें मिलती हैं, है ना? तो फरमाते हैं कि उस वक्त मैं नबी हूँ। हाँ क्या कह रहे हैं हुजूर हमारे नबी, कि मैं उस वक्त भी हाँ मैं नबी हूँ। हाँ हाँ, और नबी को तो तो अब अल्लाह हमारा- ने पहले से फिक्स कर रखा ना। अब हमारा हाँ हाँ, जी। ये तो देखो, और वादा भी लिया है तमाम रूहों से, तमाम नबियों की रूहों से, तमाम, हाँ। है ना? हाँ मालूम है ना? जी जी जी। चलिए बहरहाल ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, फिर आपको माशाल्लाह काफी कुछ सीखा है आपने। हाँ काफी। और बस मैं ना कोई बात सुनता हूँ ना तो उस पर सवाल पूछने लग अच्छी जाता बात हूँ। है, आपने मुझे अब अच्छा देखो लगा। ना, और आपने मैंने नहीं बताया ना, एक चीज, वो सवाल बार बार ध्यान में घूम रहा है, अगर पूछ लूँ तो आपकी इजाजत बोलो हो? बोलो बोलो बोलो, क्या है?
पहले भी मुझसे ऐसे ही करते थे लोग, तो इसी वजह से दिमाग जो है ना परेशान था। कोई बात नहीं, आप मुझे रोज कॉल करें, अगर कोई भी किसी तरह की बात करता है तो आप मुझे कॉल करके मालूम करें नूर हसन भाई ऐसे बात है, मतलब क्या मामला है, क्या करें और क्या ना करें। एक चीज पूछो सर। बोलिए सर, अगर आम का पेड़ लगाना हो तो बीज कौन से लगाऊं? देखिए, आम का पेड़ लगाना है वो तो आप जानेंगे ना कि आपको आम कौन सा खाना है, और उसकी कलम भी बनानी है, और आप सुनिए, और खाली आप बीज लगा देंगे तो कटाई पैदा होगा, उसकी कलम भी बनानी पड़ेगी, समझे? हाँ, कलम बनानी पड़ेगी उसकी। हाँ, यानी ऐसे करके मानिए, हम अपने बच्चे को जो है अगर कुछ बनाना चाहते हैं, हाँ, तो उसको इसी तरह मतलब आजमाइश इसको कहिए या क्या कहिए, इसको बाहर छोड़ना है, मदरसे में डालना है, इसको स्कूल डालना है, उसको कुछ ना कुछ तालीम दिलाना है, यानी उसको दूर रखना है, यानी अपने सीने पे पत्थर रखना है ना। और जब लोहे से कोई सामान बनाया जाता है, चाहे वो उसको दराती बनाओ, खुरपा बनाओ, कोई भी औजार उसका बनाओ, तो उसको गर्म करना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल जानते हैं? हाँ। सोने का कोई सामान बनाओ तो लोहा जो सुनार होता है तो उसको तपाता है, गर्म करता है, और गर्म करने के बाद फिर उसका कुछ भी बना देता है ना। जी जी। बहरहाल, तो अब आपके इस मसले का तो मुझे नहीं पता कि वो आप कौन सा आम खाएंगे और कौन सा मतलब बीज लगाएंगे, वो मुझे आप बता दें, मेरे सर के ऊपर से जा रही है ये बात। हाँ, नहीं, आप सवाल समझेंगे आप। मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई चीज जैसे कि हमें बनाना हो, तो मिसाल के तौर पे अगर मुझे साग उगाना है तो साग की बीज डालते हैं, भुट्टा उगाना तो भुट्टा की बीज डलेगा, है ना। नहीं, आपने एक आम की मिसाल दी, तो आम तो कई तरह का है, इसलिए मैंने कहा। मगर समझे नहीं आप। अब जिस तरह का भी आम होगा, जैसे लंगड़ा आम है, हाँ, तो लंगड़े आम का लंगड़ी बीज डलेगा ना। देखिए, आप ये चाह रहे हैं कि हम खाली लंगड़े का बीज लगा के लंगड़े की हमने आम खाया और उसको हमने ऐसे लगा दिया और उसको ऐसे ही बड़ा होने दें, तो वो लंगड़ा नहीं बनेगा बल्कि कट्ठा बनेगा। हाँ, मतलब बीज तो उसका डालना पड़ेगा। नहीं, आप उन लोगों से मालूम कर लें जो इसका काम करते हैं। वो बात आपकी सही है, मगर मैं तो उसको तराशना पड़ता है मेरे भाई। हाँ, तराशना पड़ता है, हमें भी अपने आप को तराशना पड़ता है, और अब तुम भी उसी कैटेगरी में हो, तुम भी तराशे जा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी आजमाइश है, अल्लाह ने आजमाइश के लिए ही बनाया इंसान। हाँ 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 हाँ, और देखो एक बात और बता दूं। हाँ, आप कलमा पढ़ के मुसलमान बने हो जी। आप पहले गैर मुस्लिम थे, आपने हमारे नबी का कलमा नहीं पढ़ा था जी, मगर हमारे नबी की शान में शायद कभी तुमने तौहीन भी नहीं की होगी। बिल्कुल नहीं, बल्कि जो माशाअल्लाह। अगर पहले, एक बात और बता। हाँ, एक मिसाल दूंगा मैं, रुको। हाँ, पहले तुम गैर मुस्लिम ही अच्छे थे उन वहाबी देवबंदी दुश्मन रसूलों से जो आज कलमा पढ़ के गुस्ताखी करते हैं। हाँ, ये बात ध्यान रखना मेरी। हाँ हाँ हाँ, और गांठ बांध लेना। अगर तुम फिर कलमा पढ़ के वहाबी देवबंदी शिया राफजी खारजी कादियानियों में चले गए, हाँ, तो पहले से ज्यादा गुस्ताख होगे और पहले से ज्यादा सजा पाओगे। नहीं, आप समझे नहीं थे जी। अल्लाह हिदायत किसे देता है? हाँ हाँ, बेशक अल्लाह ने आपको हिदायत दी है, और आपको हिदायत दी है तो आप और भी हिदायत की दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर चलाए, और उलमाए हक, उलमाए अहले सुन्नत और अहले सुन्नत वल जमात में दाखिल फरमाए जो सहाबा के नक्शे कदम पर हैं। अब मिसाल के तौर पे मैंने अल्लाह से कहा कि मेरे रब, मेरे ईश्वर, तू मुझे ऐसे जगह पर ले चल जो मैं सिर्फ तेरी इबादत करूं और तू सच्चा, मैं सच्चे दिन की इबादत करूं। तो अल्लाह ने मुझे यहाँ पे भेज दिया, मुझे यहाँ भेज दिया। अल्लाह ने इसीलिए तो हिदायत दी ना, जब मैं मेरी तलब जागी। जी जी, माशाअल्लाह जी। तो फिर अल्लाह मुझे कैसे गुमराही पे फिर भेजेगा? और अगर भेजेगा तो मैं अल्लाह से फिर दरखास्त नहीं नहीं, सुनिए, एक बात सुनिए और सुनिए। हाँ, अल्लाह किसी को कहीं नहीं भेजता। अल्लाह ताला का खुद का ऐलान है कि अल्लाह भी उसको चेंज नहीं करता, नहीं बदलता, जब तक कि वो खुद अपने आप में तब्दीली पैदा ना करे। हाँ, तो वही बात होगी ना। और आपने तब्दीली पैदा की है, तो बस इतनी और तब्दीली करें कि आप जो है ये तलाश करें कि हुजूर का वफादार कौन है और गद्दार कौन है। हाँ। और मैंने खुल के बताया कि देवबंदी, वहाबी, शिया, राफजी, खारजी, कादियानी, ये सब गुस्ताखे रसूल हैं, ये सब दीन के दुश्मन हैं। मैं इनमें तो नहीं, पहले मेरी बात, मैं खुल के बोलना पसंद करता हूँ, कोई यहाँ दबाव लचाओ की कोई बात नहीं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ सच्चाई है, मरेंगे तो सच्चाई पर।
हाँ बिल्कुल, समझे? हाँ मैं खुल के बोल रहा हूँ, अगर कोई हमें यानी अहले सुन्नत वल जमात वालों को यानी मसलक आला हजरत वालों को हाँ कोई जी गलत साबित कर दे, हाँ, ठीक है, जी तो मैं उसको मुंह मांगा इनाम देने के लिए तैयार हूँ, हाँ। ठीक है? और दूसरी नहीं, एक बात और भी है ना जी, कि बताइए। मैंने जो है अभी 1-1.5 महीने से कुरान पढ़ रहा हूँ, और मेरी नजर में कोई आयत ऐसी आई नहीं जिसमें लिखा हुआ हो देवबंदी, बरेलवी, अहले वो हदीस। ऐसे समझ में नहीं आएगा, वो हुजूर के हदीस से समझ में आएगा। हाँ, एक चीज जरूर लिखा हुआ है जो मैंने पढ़ा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी मानना पड़ेगी आपको और कुरान भी मानना पड़ेगा, तब आप मुसलमान हाँ। कहलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मगर एक चीज और भी है ना जी। कि हदीस को तो मानना जरूरी है। बहुत जरूरी है भाई। हाँ, क्योंकि जैसे कुरान को मानोगे वैसे ही हदीस को भी मानोगे। अगर आप हाँ, हदीस नहीं मानते, समझ कुरान गया। मानते हो तो भी मुसलमान नहीं रहोगे, और आप खाली हदीस मानते हो और कुरान नहीं मानते तो भी मुसलमान नहीं रहोगे। या फिर ऐसा कि तुम अपने अपने मतलब की मानते हो और जो तुम्हारे खिलाफ है उसको नहीं मानते, तब भी मुसलमान नहीं रहोगे। नहीं, देखो अल्लाह ने अगर हिदायत दी है तो वो अच्छी अकल भी देगा। नहीं, मैं एक मिसाल देके समझा रहा हूँ, हाँ, सिर्फ खाली तुम्हारे लिए नहीं, हाँ, मैं सारे लोगों के लिए ये बता रहा हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं इन्हें नहीं मानता, क्योंकि मैंने कुरान में एक जगह पढ़ा है कि अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। माशाअल्लाह, ये अल्लाह की रस्सी है क्या? कुरान है नहीं, फिर क्या है? और आपस में खाली कुरान अल्लाह की रस्सी नहीं मेरे दोस्त, हदीस भी है, हदीस भी खाली नहीं। फिर मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, मैं अहले सुन्नत वल जमात से हूं ना, मैं बताऊंगा कि अल्लाह की रस्सी है क्या। जी 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 अल्लाह की रस्सी कुरान है, हदीस है, सहाबा इकराम है, जी 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 ताबाइन, तबे ताबाइन, कुतुब अब्दाल, औलिया इकराम, जी 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 जी। ये सब अल्लाह की रस्सी हैं। इनको सबको पकड़ के चलना होगा। मगर जो एक इनसे बात- हटा, जो इनसे दूर हुआ, वो गया गड्ढे में। बिल तो एक बात पूछूं मैं? ये सब अल्लाह की रस्सी हैं, समझे ठीक है। भाईजान? तो एक बात और पूछूं? बोलिए बोलिए बोलिए। अब अल्लाह की रस्सी, अब ये देखिए साहबा इकराम भी है, जी जी जी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, और सारे पैगंबर अच्छा, एक भी और हैं, चीज भी है। सुनिए सुनिए, अगर आपने कुरान और हदीस को माना, सहाबा को ना माना, हाँ ठीक मगर है? हाँ, एक मिनट, सहाबा को छोड़ दिया यानी अल्लाह की रस्सी छूट गई, समझ रहे हैं? क्या मुसलमान जी। रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं। नहीं रह पाएंगे ना? मगर एक सवाल तो पूरा होने हाँ, दीजिए। बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, क्या साहबा इकराम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हट के काम करते थे? अरे मेरे दोस्त, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि सहाबा इकराम को अगर- पकड़ना होगा। देखिए मैं क्या कह सुनिए, रहा अच्छा एक और चीज सुनिए, हाँ, बोलिए। आपने तरावी पढ़ी है? तरावी नहीं, अभी तो नहीं पढ़ी, टाइम की वजह से। अच्छा अच्छा, ये रमजान से पहले ईमान लाए थे या रमजान के बाद? रमजान से पहले। रमजान से पहले। हम्म, अच्छा, तो नमाज पढ़ते थे उस टाइम पे? नहीं पढ़ते थे? नहीं पढ़ता था, मुझे नमाज का तो शौक शुरू तो से ये ही है। तरावी जो रमजान में जो कुरान सुनाया जाता है रमजान में, हाँ हाँ, तो वो तरावी पढ़ी है आपने? नहीं पढ़ी है? नहीं अभी नहीं पढ़ी मैंने। अच्छा, अभी नहीं पढ़ी है। चलिए, तो मैं क्या मिसाल दूं आपको? वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जैसे कि मैंने मान लिया कि अल्लाह की बात मैं मान रहा हूँ, हाँ। ठीक है, और तो वो तो सहाबी भी अगर मैं किसी सहाबी की बात मान रहा हूँ, जैसे कि मैंने हजरत उमर की बात देखिए, मान मैं बताऊं ली। आपको, एक मिनट बात तो होनी चाहिए। अब मैं हजरत उमर की बात मान रहा हूँ ना, हजरत उमर ने कुछ बात हमें बताई, तो वो अल्लाह के रसूल की तो बात बताएंगे ना वो। बिल्कुल बिल्कुल है बिल्कुल। ना? और अल्लाह के रसूल अल्लाह की बात बताएंगे, तो ये सारी देखिए, वस्तु सुनिए एक एक ही बात तो हो और, गई। मेरी बात जी। सुनिए आप। जी 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 एक मर्तबा एक सहाबी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाँ जी एक शहर का काजी बनाकर, वहां का हुक्मरान बनाकर भेजा, जी बादशाह बनाकर भेजा जी कि जाइए आप फला जगह चले जाइए, जी ठीक है? जी 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 वो तैयार हो गए। हुजूर ने फरमाया, बताइए कि वहां अगर कोई फैसला आता है तो फैसला किस तरह करेंगे आप, जी है ना? जी तो हुजूर के जो सहाबा हैं उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, मैं रब के कुरान से फैसला करूंगा, अल्लाह के कलाम से फैसला करूंगा। जी हुजूर ने फरमाया, अगर तुम कुरान में ना पाओ तब, अगर वो तुम्हें कुरान में ना मिले तो बोले या रसूलल्लाह, फिर मैं हदीस से फैसला करूंगा। हुजूर ने फरमाया, अगर तुम हदीस में भी ना पाओ, तुम्हें हदीस में भी ना मिले तब, तो फिर वो सहाबी रसूल फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह, फिर मैं इजमाए उम्मत देखूंगा। जी क्या देखेंगे?
اجماع امت کے اس کا مطلب امت کا فیصلہ دیکھیں گے. امت کا فیصلہ ہے، یعنی ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے ہاں کیا فیصلہ لیا اس پر؟ ہاں جو بڑوں نے، جو اکثریت جو ہے نا، اکثریت نے کیا مانا ہے. جی اچھا، پھر حضور نے کہا اگر اس میں بھی نہ پاؤ، اگر اس میں بھی تلاش نہ کر پاؤ، وہ وہاں بھی نہ ملے، تب تو پھر ان صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ پھر میں قیاس کروں گا. یہ قیاس کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ کیا مطلب؟ سوچوں گا، وزن کروں گا، ناپوں گا، تولوں گا. قیاس یعنی اس کا وزن کرنا، ناپنا، تولنا کہ بات کہاں سے کہاں تک کیسی بیٹھتی ہے نا. جی ہاں، ناپنا، تولنا، وزن کرنا، سوچنا، سمجھنا، سمجھ رہے؟ جی جی یا رسول اللہ پھر میں قیاس کروں گا، یعنی سوچوں گا، سمجھوں گا، وزن یعنی کروں گا کیا چیز بہتر ہے نا. ہاں، تو اس میں کسی بھی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے جی 4 چیزوں کی ضرورت پڑے گی. سمجھ رہے ہیں بھائی جان؟ جی 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 ہاں، اور میں گھما پھرا کے بات کرنے کا عادی نہیں ہوں. ہاں بالکل. جن کا نام بات ہے، گھمانے کی ضرورت کیا ہے؟ جن کا نام دیوبندی وہابی ہاں یعنی غیر مقلد اہل حدیث، ہاں یہ غیر مسلموں سے بدتر ہیں، برے ہیں. غیر مسلموں نے تو صرف کلمہ نہیں پڑھا ہے اس لیے مسلمان نہیں، اور یہ تو کلمہ پڑھ کے توہین کرتے ہیں اس لیے غیر مسلموں سے زیادہ جو ہے جہنم کے حقدار ہیں. نہیں اگر آپ کو جہنم میں جانا ہے تو ان کے ساتھ رہنا، اور اگر جنت میں جانا ہے تو پھر آپ جو ہے سنی حنفی بریلویوں کے ساتھ ہو جانا. میں کھل کے بول رہا ہوں. اب چلو ٹھیک ہے، میں یہ تو ہے کہ آپ نے تو کہہ دیا. میں نے قرآن میں ایک آیت پڑھی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ کوئی بھی اجنبی تمہیں کوئی چیز بتائے تو پہلے اس کی تحقیق کرو، پھر بالکل بالکل بالکل. جی ہے نا. جی تو ہاں، میں تو ان کی مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہوں. اب مت جائیے گا، آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ ان کی بھی جب ان کی نماز نہیں ہوگی، ان کے اماموں کی نماز نہیں ہوگی تو آپ کی بھی نہیں ہوگی. سنیے تو بات تو سن لیجیے. ہاں، میں نے اب تک نہیں دیکھا کہ بالکل یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ہے، اور میں مسجد میں خود جاتا ہوں. آپ تو نہیں جاتے ہوں گے مگر میں جاتا ہوں. یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں؟ جی نہیں، مجھے نہیں پتا. مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں؟ جی نہیں، مجھے 15 سال سے زیادہ دیوبندیوں میں رہا ہوں اور ان کی رگ رگ سے واقف ہوں. اور تمہاری نظر میں دیوبندیوں کا کوئی بھی بڑے سے بڑا ملا ہو تو میری بات کرا دینا. نہیں، مجھے اس سے کیا لینا دینا، دیوبندی کیا بریلوی کیا، میں یہ نہیں دیکھتا. ہاں تو میرے دوست دیکھیے، میں آپ کی آخرت کے لیے اتنا بول رہا ہوں. ہاں، آپ کی آخرت اچھی ہو جائے، آپ نے کلمہ پڑھا ہے، آپ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جائیں انشاءاللہ. مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ان کی مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہوں. مگر کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے کوئی برائی کری، بلکہ یہ تو تعریف کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ کہتے ہیں کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی اس نے اللہ کی بات نہیں مانی. اچھا ایک منٹ، بہت اچھا لگا مجھے آپ سے سن کر. جی اب میں اتنی گزارش کروں گا آپ سے، اب آپ اثر میں جائیں گے نا جی، تو وہاں کے امام صاحب سے یا کسی بھی تبلیغی جماعت کے کسی امیر سے آپ میری بات کرا دیں. جی 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 ضرور. اور آپ واٹس ایپ چلاتے ہیں؟ ہاں واٹس ایپ چلاتا ہوں، اسی نمبر پہ چلاتا ہوں. آپ اردو پڑھنا جانتے ہیں؟ ہاں تھوڑا بہت جانتا ہوں. تھوڑے بہت سے کام نہیں چلے گا؟ ٹھیک ہے، میں پورا پڑھ لوں گا، کوئی بات نہیں. ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے. اب اچھا آپ یہ بتا دیجیے مجھے سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں لانا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر جو مانتا ہو، جس کا نظریہ ہو حضور کا خیال نماز میں لانا گدھے بیل کے خیال سے بدتر ہے، برا ہے. اور بزرگوں کا خیال نماز میں جو ملحوظ ہوتا ہے، جو نماز میں آ جاتا ہے، وہ شرک کی طرف لے جاتا ہے. تو ایسا نظریہ رکھنے والا، ایسا ایمان و عقیدہ رکھنے والا، ایسا ذہن رکھنے والا کیا مسلمان ہے؟ اگر یہ ذہن ہے تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. مگر اگر کیا ہے گناہ؟ ہے گناہ کی تو معافی ہے، یہ گناہ ہے، یہ شرک ہے، اس کے اللہ معافی ارے بھائی میرے دوست، یہ حضور کی توہین ہے اور توہین کفر ہے. چلو ٹھیک ہے، اگر بھائی اللہ کی ذات میں شریک تھوڑی کر رہے ہیں جو شرک ہو جائے گا. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، مگر میں میرے مطلب میرے بھائی بات کو سمجھو. پہلے شرک کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات میں کسی دوسرے کو ساتھی کرنا، شریک کرنا. ہاں یہ بات سمجھے. میں ہر چیز بتاؤں گا، سمجھاؤں گا. میں آپ میرے بھائی ہو، آپ نے کلمہ پڑھا ہے، آپ پتہ نہیں کن لوگوں کے ساتھ ابھی ہو اور کن کے نہیں ہو، تو اس لیے میرا کام ہے آپ کو سمجھانا، آپ کی آخرت سنورے
ہے نا, آپ کی آخرت اچھی ہو جائے, اس لیے میں آپ کے ساتھ یہ محنت کر رہا ہوں. حالانکہ میں کسی کام میں تھا, مصروف تھا, پھر بھی میں نے آپ سے بات کی اور اب میں چلتے ہوئے آپ سے بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کی آخرت اچھی ہو جائے اور آپ کے ذریعے سے, آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے. اور مجھے بھی. بس میں اپنی بہن, آپ جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں تو کھلے جنتی ہیں. بالکل, میری بات سن رہے ہیں آپ؟ جی. کوئی کافر اگر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے تو وہ کھلا جنتی ہے. جی. تو آپ کے لیے تو میں شک کر نہیں سکتا, مگر ہاں اگر آپ کسی وہابی دیوبندی کے ساتھ اس دنیا میں رہتے ہیں اور اس کے نظریے کو, اس کے عقیدے کو اچھا سمجھتے ہیں, بہتر سمجھتے ہیں اور ہمارے سمجھانے پر بھی نہیں مانے, اچھا, تو پھر کوئی پتہ نہیں کہ حال کیا ہوگا, پھر اس سے بدتر ہی حال ہوگا جو پہلے تھے. نہیں, ایک چیز پوچھوں. اب جیسے کہ میں یہ تمہارے اہل حدیث کی مسجد میں نماز پڑھنے گیا, ہاں ہے نا, ایک دفعہ, کیونکہ میں سب میں جاتا ہوں, مجھے عادت ہے تحقیق کرنے کی. ہاں ٹھیک ہے, آپ جائیے. مگر میں نے ان سے پوچھا کہ میں نماز میں نیت کیا رکھوں, ہاں, تو انہوں نے کہا کہ تم نماز پڑھو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے, تمہارا رب راضی ہو جائے. ہاں, تو یہ اچھی بات ہے نا. ماشاء اللہ, بہت اچھی بات ہے. اس میں جو ہے کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم نماز دکھاوے کے لیے پڑھو یا نماز کسی بھی جو ہے کسی لالچ سے پڑھو. اور بھی بہت ساری باتیں آ سکتی ہیں. نماز جو ہے یہ قرض ہے اللہ تعالیٰ کا. ہاں, اور نماز اللہ کا قرض ہے اور یہ ہم اللہ کا قرض جو ہے ادا نہیں کر سکتے پوری طرح سے, ٹھیک ہے, جو نماز مطلب حق ہے, سمجھے, ہم اس طرح سے نہیں کر سکتے. مگر جیسے بھی آتی ہے پڑھو. ہاں, نہیں ٹھیک ہے, جیسے آتی ہے وہ تو ٹھیک ہے, مگر اللہ بھی رہا ہوں. اللہ اس کو قبول کر لے, بس یہی بہت بڑی بات ہے. اب میری کوشش یہی رہتی ہے کہ میں حدیث کے حوالے سے میں وہ طریقے سے پڑھوں جس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. میں کوشش سنیے ایک غلطی اور یہاں تمہاری میں جو ہے اجاگر کر دوں, مطلب آپ کو سمجھا دوں. آپ حضور کی طرح نماز پڑھ ہی نہیں سکتے. جی, جب صحابہ نہ پڑھ سکے تو آپ کیا پڑھ سکتے ہو یار؟ وہ اس لیے نا کہ سنیے میں بتا دوں آپ کو. ارے آپ کا جو پالا ہے نا وہ شاید ابھی کسی دوسرے لوگوں سے پڑا ہوا ہے جو کہ خود مسلمان نہیں ہے, تو اب وہ آپ کو کیا صحیح مسلمان کریں گے؟ وہ تو آپ کا بھی ایمان لوٹ لیں گے جو آپ نے کلمہ پڑھا ہے. بہرحال جب صحابہ نہ پڑھ سکے حضور کی طرح تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ جی جی. ہاں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پتہ ہے کیا فرمایا؟ اے میرے صحابہ, تم نماز اس طرح پڑھا کرو جیسے تم مجھے دکھائی دیتے ہو. تم ایسے نماز پڑھو جیسے میں تمہیں دکھائی دیتا ہوں. تم جیسا مجھے دیکھ رہے ہو, سمجھے, جیسا مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو, جیسا میں تمہیں دکھائی دے رہا ہوں. حدیث میں یہی پڑھا کہ جیسا وہ ایک حدیث میں ہے کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو یہ طریقے سے لکھا ہے. وہی بات ہے نا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یار میں بتاؤں ایک بات, ایک مہینے میں اتنا تو علم نہیں آتا ہے جتنا آپ کو علم ہے. مجھے ابھی بھی ڈاؤٹ ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ چھپا رہے ہو. ٹائم تو آپ کو کافی ہو چکا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے, مگر میری عادت ہے تحقیق کرنے کی. اور نہیں, آپ کی عادت ہے, بہت اچھی بات ہے. تو آپ پہلے سے ہی تحقیق کر رہے ہیں, کئی سال پہلے سے, یا ابھی ایک مہینے میں تحقیق کی ہے؟ تحقیق تو میں بہت پہلے سے کر رہا ہوں. کب سے؟ کافی ہو گیا, میں تو قریباً 10-15 سال ہو گئے, مگر نیت اب. ماشاء اللہ, بڑی اچھی بات ہے. تو آپ کا معاملہ مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے کہ وہ ایک امریکہ کا جو عیسائی تھا, وہ اسلام کے لیے خرابیاں تلاش کرنے کے لیے قرآن پڑھ رہا تھا اور اسلام کی جو ہے ڈیٹیل جانتا تھا اور خود مسلمان ہو گیا. بالکل. اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں. انہیں چیزوں کو دیکھ کر ہی میرے دل میں امنگ جاگی کہ یہ لوگ کیا ڈھونڈ لیتے ہیں جو فوراً اسلام قبول کر لیتے ہیں. ہاں, تو اسلام میں اللہ تعالیٰ نے وہ لچک دی ہے جو اس کو جتنا جھکائے گا اتنا ہی یہ اوپر ابھرے گا. بالکل, یہ تو ہے. ہاں, بس یہ ہے کہ میں جو ہے نا اس چیز کی زیادہ وہ کرتا ہوں کہ میری جو عبادت ہے وہ میرے رب کو پسند آ جائے. اب وہ ماشاء اللہ بالکل پسند آئے گی بھائی. دیکھیے میں نے آپ سے کیا کہا, آپ نے سچے دل سے کلمہ پڑھا ہے, جی ٹھیک ہے, آپ نے سچے دل سے کلمہ پڑھا ہے, سچے اسلام میں آپ آئے ہیں, سچے دھرم میں آپ آئے ہیں, ٹھیک ہے جی. ہاں, سچے نبی کے سچے امتی بنیے. جی بات سمجھ رہے ہیں بھائی جان, سچے نبی کے سچے امتی بھی بنیے, نام میں نہیں کام کے امتی بنیے. ہاں بالکل. اور اللہ کے فضل و کرم سے میں چاہتا ہوں, میں آپ کے جیسے لوگوں پر خوشی محسوس کرتا ہوں, فخر محسوس کرتا ہوں
जी समझे? जी। तकब्बुर नहीं, नहीं तकब्बुर नहीं, फख्र। तकब्बुर मना है। हाँ घमंड तो अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। जी 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 जी। मैंने पढ़ा है। और हाँ। एक चीज और पढ़ा है सर, इसी तो वजह से सुनिए, कहता मैं किसी क्या की बोल बुराई रहा नहीं हूँ, करता। अगर आपने वाकई सच्चे दिल से कलमा पढ़ा है और आप मुसलमान हुए हैं जी। तो आप तहकीक तो वाकई करते रहिए, जरूर कीजिए, जी मगर आप मेरी बात करा करा के तहकीक कीजिए। जी 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 जी। दुनिया में ऐसा देवबंदी और वहाबी कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझसे बात करके हाँ। मेरे सामने सही जवाब दे पाए। और हर हवाला आपके साथ आपके पास भेजूंगा, पहले आप पढ़िए हाँ। और फिर उनसे मालूम कीजिए। नहीं, मेरी तो एक आदत है ना, पहली बात मेरी ये आदत है कि अगर कोई कुछ बोलता है ना, जैसे हाँ। कि देवबंदी बोले या हाँ। फिर अहले हदीस बोले, तो मैं उसको सुनता हूँ और उनसे सवाल करने लगता हूँ। मैं ये नहीं कहता तुम खराब हो, क्योंकि जो ना एक हदीस में मैंने पढ़ा कि अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि गीबत के बारे में कि गीबत ना करो। अच्छा, एक और चीज बताऊं मैं भाईजान, अगर बुरा ना मानो तो। जी जी नहीं बिल्कुल बोलिए। आप तहकीक तो सब करेंगे ही करेंगे। जी मेरा एक चैनल है नूर हसन रज़वी नेटवर्क के नाम से, जी जी आप उस पर हमारी गुफ्तगू सुने जरा, जी और ये देखें कि कौन हुजूर की वकालत कर रहा है और कौन हुजूर के मुखालिफ बोल रहा है। हाँ। नहीं सर, आप समझे नहीं मैं क्या नहीं, कह रहा मैं क्या कह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ उसको आप समझे थोड़ा सा। हूं। जी जी आप उधर भी तहकीक करें जी जी और आप मेरी ऑडियो सुन के भी तहकीक करें। और हमारे बहुत सारे हजरात हैं जो डिबेट करते हैं और हाँ। बहुत सारे Actually क्या उलमा है हैं। ना सर, हाँ, मैं एक्चुअली क्या है कि अच्छा, एक और चीज मैं बताऊं, जी आप हाफिज एहसान कादरी साहब को सुना करें, श्रीलंका वाले। जी आप मौलाना फारूक रजवी साहब को सुना करें, नागपुर वाले। हाँ। ठीक है, मुफ्ती सलमान नजरी साहब किबला को सुना करें। हाँ ठीक है, जी। और सर मेरी एक आदत है कोकब नूरानी साहब हैं, मौलाना कोकब नूरानी साहब पाकिस्तान वाले, उनको आप सुना करें, समझे? मगर सर एक बात और है ना, मौलाना अब्दुल, सुनिए तो, जी अबुल हक्कानी साहब हैं, उनको सुना करें। जी गुलाम रब्बानी साहब हैं, उनको सुना करें। आप नाम लिख लें, रिकॉर्ड कर लें। जी जी इसमें देख लूंगा मैं। हाँ, तो निकाल के- मौलाना अब्दुल मुस्तफा रुदौलवी साहब को सुना करें। जी आप सब रिकॉर्ड कर लें, नाम लिख लें, और या फिर किसी एक दिन एक आलिम का नाम निकाला और उनके ताल्लुक से उनकी कोई भी तकरीरें सुनी, फिर किसी दूसरे आलिम की गुफ्तगू सुनी, फिर किसी और आलिम की गुफ्तगू सुनी, ऐसा करके आप नंबरवारी से एक एक दिन सुनिए। इंशाअल्लाह आपका ईमान जगमगाने लगेगा और आपके जिस्म में एक ताजा रूह जो है जोश मारेगी। वो बिल्कुल आपकी सही है सर, इस पे गौर करूंगा मैं। पता है क्या मेरी एक कमजोरी है ना सर, ये टीवी और मोबाइल पे मैं उलमा को बहुत कम सुनता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि जो है ना लाइव जो लोग बात करते हैं ना, जैसे कि उलमा जो हमारे जो मिल जाए, मैं उनसे, ताकि मैं पूछ सकूं उनसे, अगर वो कुछ बता रहे हैं ना तो उनके बारे में पूछ सकूं। मैं बहुत मस्जिदों में भी जाता हूँ ना, तो अगर कोई बात बता रहा है तो मैं इमाम साहब से उससे पूछ लेता हूँ मैं कि ये क्या बताया आपने, मैंने तो ये पढ़ा है। ऐसा भी हो जाता है। अच्छी बात है, हाँ। बहुत अच्छी बात है। तो मैं उनसे टीवी में तो पूछ नहीं पाऊंगा ना, इसलिए मैं जो मैंने देखता आपसे हूँ। कहा उसकी भी तहकीक करें। जी 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 ठीक है, जी हाँ जी अच्छी बात ठीक है, फिर रखें। हाँ आप ठीक है, आपसे बातें होती रहेगी इंशाल्लाह। कोई और बात तो है, मगर अब आपके पास अगर वक्त है तो। ठीक है, मैं रास्ते में चल रहा हूँ और काफी देर से रास्ते में चल रहा हूँ, जी तो बेहतर नहीं है, जी मगर मुनासिब मैंने ये भी नहीं समझा कि यार पहली बार आपने कॉल किया और जी, आपने जी, ये वाला मैटर बताया, मामला बताया। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छी बातें हैं। इस तरीके से ही तो मेरा दिल साफ भी होता है और जहन भी अच्छी हो जाती है कि लोगों की बातें सुने और देखें, तहकीक अपने करें। अंदर कोई घमंड कोई तकब्बुर नहीं है, इसलिए मैंने आपको वक्त दिया। नहीं तो फिर अगर मोमिन है तो घमंड हो ही नहीं सकता ना, और हाँ। अगर घमंड है तो फिर मोमिन नहीं होंगे, क्योंकि अल्लाह को वही बंदे पसंद है जिनमें तकब्बुर नहीं है। हाँ, वो बंदा ही नहीं है अल्लाह का जो जिसके अंदर घमंड हो। अल्लाह ने सख्त मना करा है घमंड। और एक बात मैं कहूँ आपसे, जी जो किसी भी तरह से हुजूर की शान घटाता हो, किसी भी तरह से, जी 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 किसी भी तरीके से, जी आप उस इंसान की बात कभी भी नहीं मानिएगा। बिल्कुल नहीं। अगर अल्लाह के रसूल के खिलाफ जिस चीज को अल्लाह ने, मैं सिर्फ ये मानता हूँ कि जो अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने कह दिया कि ये सही है तो उसको मानूंगा, और जिस चीज को कह दिया कि ये खराब है उसे खराब मानूंगा, और जितना अल्लाह के रसूल ने कहा है ना उतना ही मानूंगा, अपने तरफ से कुछ नहीं इसमें डालूंगा। ये है मेरा ईमान। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जी, अगर अल्लाह के रसूल ने कह दिया है और आपको अब कोई भी जरूरत पड़े, जी जी किसी भी तरह का कोई मामला पेश आए, जी
तो आप इस गुनाहगार को कॉल कीजिएगा, मेरे इल्म में होगा तो आपको जरूर बताऊंगा, वरना किसी आलिम गुनहगार दीन तो से हम सब आपको। हैं, हम सब हैं गुनाहगार, और अल्लाह माफ करने वाला है, वो बड़ा रहीम और करीम है, बेशक। वो बड़े से बड़ा गुनाह माफ कर देता है। बस बंदे को चाहिए कि उसके सामने एक दफा गिड़गिड़ा दे, वो बड़ा माशाअल्लाह, रहम। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा लगा आपसे ये सुनकर कि अल्लाह ताला बड़ा रहीम और करीम है, गफूर रहीम है। बहुत ज्यादा, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जी जी इतने जी जी, बड़े-बड़े बिल्कुल। गुनाह उसने कई कितनों के गुनाह माफ कर दिए, बड़े से बड़े। मामला बहुत दूर तक है, आपको मैं बताऊंगा तो आप कहेंगे अच्छा ऐसा भी है। जी मामला बहुत दूर तक है, मगर हुजूर के उम्मतियों तक है वो, और बाकी जो हुजूर के गुस्ताख हैं, जी जी समझे, जो जी। हुजूर के दुश्मन हैं, इस्लाम के दुश्मन हैं, उनके साथ मामला आखिरत का बहुत ज्यादा सख्त है, कर रहा है। तो मैं बस गुजारिश आपसे यही करूंगा कि हुजूर के गुलामों के साथ रहो जो हुजूर की तारीफ करते हैं। नहीं, मैं पता है जिस इंसान के साथ रहता हूँ ना, मैं सिर्फ उसके बारे में सोचता हूँ। अगर एक शख्स मेरे साथ है और उसने जो है नबी के बारे में कोई गुस्ताखी कर दी, तो वो मेरा नहीं है, मैं भगा जी जी, देता हूँ। माशाअल्लाह उसी की कौम का अगर कोई नबी की तारीफ करता है तो वो मेरा भाई है। मैं इतना माशाअल्लाह, जानता सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। हूँ। मिसाल तो के मैं तौर पे अगर धीरे कोई धीरे अहले आपको, हदीस- अच्छा चलिए मैं कुछ आपको बातें बताई देता हूँ, वो लोग नहीं बताएंगे। जी बस आप तहकीक करना, पहले तो यही वाली बात पूछना कि जी। भाई मैंने ये सुना है कि जो अहले हदीस लोग हैं, वहाबी लोग हैं और देवबंदी लोग हैं, ठीक है, जी इनके जो बुजुर्ग हैं, इनके बुजुर्गों ने हुजूर की शान में तौहीनें की हैं। बस इस लफ्ज को इस्तेमाल करना। हाँ, ये भी पूछूंगा, और वो ठीक तौहीन है। क्या है, किसी तरीके पे भी हो वो नाजायज है। हाँ अल्लाह के रसूल के बारे में कुछ और गलत नहीं कर सकते। हाँ 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 हाँ, और हम इस बात का जो है सबूत देंगे, ठीक है। जी जी जी। हाँ, और देखिए- लोग हमारे खिलाफ भी बोलेंगे, समझे। देखिए सर, एक चीज सुनिए पूछूं? तो। जी हाँ, क्योंकि असल में बात ये है कि अगर मैं आपको कुछ कह रहा हूँ जी जी तो मेरे अंदर चाहे 1000 अच्छाई हैं, कोई बुराई नहीं है, मगर आप मुझे भी कह डालोगे, जी है कि नहीं है। जी। नहीं, ऐसा नहीं है। सुनिए मेरी बात, सुनिए। जी जी तो बोलिए। कुछ लोग हमें भी जो है कहेंगे, या आपका दिल लुभाने के लिए कहेंगे, देखो भाई हम किसी की बुराई नहीं करते हैं, जी समझे। जी मैं दोनों तरह की बातें आपको बता ही देता हूँ। तो ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे मार्केट में, सब तरह के लोग आपको मिलेंगे। हर तरह के लोग हैं। मैं हाँ, तो हर तरह के लोग। सर, मगर पता है सर, एक बात पूछूं, एक बात बताऊं। देखिए, हर इंसान की अलग अलग सोच है। अब जैसे कि मिसाल के तौर पे ये वसीम रिजवी है ना, इनने कुरान के खिलाफ बात करी। हाँ अब वसीम रिजवी की सजा तो अल्लाह ने तो दे दी, मगर उसकी सजा हम पूरे कौम को क्यों दे? मगर देवबंदी तो आप कह रहे नहीं है। अब देखिए, एक शख्स ने कहा होगा, मुझे नहीं पता। सुनिए, मगर सुनिए। जब मैं नमाज पढ़ने जाता हूँ ना सर, सुनिए तो, जब मैं नमाज पढ़ने जाता हूँ ना, तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ भी करते हैं, और हाँ, ये तो भी आप कहते सुनिए। हैं कि जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माना, उसको वो समझ लो अल्लाह उसका नहीं है। ये समझ लो, अल्लाह उससे प्यार नहीं करेगा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार नहीं करता। मैं धीरे धीरे बता पाऊंगा यार, एकदम से तुम समझ नहीं पाओगे, तुम्हारे सर के ऊपर चली जाएंगी बातें। जी नहीं ठीक है? आप बोलिए ना, मैं समझ नहीं लूंगा। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। नहीं, मैंने तो ये देखिए ना, ये सिंपल सी, मैंने मस्जिद में पढ़ा, किसी ने बुराई नहीं की, इसी वजह से मैं किसी की बुराई नहीं करता, क्योंकि ये गीबत है, मैं नहीं करता। मगर मैं ये तहकीक करता हूँ कि जो इसने कहा है वो सही है या नहीं, बस इतना जानता हूँ। यही मेरे अकल में, ये मैं नहीं, अल्लाह जो डालता है मेरे दिमाग में, मैं वही बातें पूछ लेता हूँ, वही करता हूँ। चलिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब देखिए ना, मैंने इतने देर से आपसे अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे आपने कहा कि मैं मोबाइल से नहीं देखता हूँ, हाँ, वो टीवी वगैरह अगर पे- सुनेंगे तो अगर सुनेंगे तो आपका डेटा खर्च हो जाएगा, मगर हो सकता है बहुत कुछ आपको मिल जाए। मिल तो जाए सर, मगर फिर दिल बेचैन हो जाएगा ना कि इन्होंने जो कहा है उसका सवाल कैसे पूछूं इनसे, ये बात आ जाती है ना। मेरी डिबेट का मैं जवाब दूंगा। जी 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 मेरी डिबेट का मैं सबूत दूंगा, और जी, जी। कोई भी मेरे किसी भी हवाले को गलत साबित करेगा, मुंह मांगा इनाम। ठीक है जी। ठीक है, जी जी हाँ, चलिए ठीक है फिर आए। हाँ, चलो ठीक है, इंशाल्लाह फिर ठीक है, मुलाकात होगी आपसे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, जो कॉमेडी चैनल होते हैं आप हज़रात, उनको तो बहुत सारे लाइक और बहुत सारी कमेंट, और उनको सब्सक्राइब भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। क्या
کسی ایسے چینل کو آپ سبسکرائب نہیں کر سکتے بھائی جس سے ایمان و عقیدے کا پتہ چلتا ہو، جس سے ہمارے آقا کے دشمنوں کا پتہ چلتا ہو، جو ہمارے نبی کے دشمن ہیں ان کا پتہ چلتا ہو، نبی کے دشمنوں کی حقیقت دکھائی جاتی ہو؟ کیا آپ کو اپنے آقا سے محبت نہیں؟ کیا آپ ایسی باتیں سنیں جو ایمان بچانے کے کام آئیں؟ اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لو بھائی دوستو، سنو اور دوسروں کو بھی سنواؤ۔ اس چینل کو سبسکرائب کر لو پلیز، آقا کے چاہنے والوں آپ تو کر لو۔